Good morning, class. Welcome to this channel. Welcome to your class. This class is relevant for 12th Commerce CBSE curriculum. In the last class, we were discussing chapter 6. We discussed meaning of staffing. Chapter 6 is staffing, as you all know. We discussed meaning of staffing. After that, importance of staffing we discussed. Today we will learn the topic staffing and HRM. That means both are similar terms. We will discuss about these two, which is broader, which is narrower, which includes what, and in which organization which term is used. Okay, so let's begin. Staffing and HRM both are similar terms. In the previous class, as we understood the importance of staffing, as we understood how staffing is important, why staffing is important, if staffing function is not done properly, what problem may arise in organization, we discussed. And we also discussed staffing helps in growth of enterprise, it helps in competing, it improves job satisfaction, it is a effectiveness to other function, it is a key effectiveness to other functions. All these points are, I am telling, importance or advantage, you can say, of staffing. Understood? Today we will learn staffing and HRM. HRM, the full form of HRM is human resource management. What is human resource management? I am writing over here. Human resource management. As you can see, there are three terms written over here. This is HRM. HRM. As you can see, three terms written over here. So you may ask, what are these three terms? First of all, I can say human means human. As you all know, this term human means human beings. Normal human beings. Human beings. But then the next term arises is resource. How can we say human is a resource? I hope you all understand the meaning of resource. If you don't know, please go through the Google. Resource means I already told in my earlier classes. Also I am telling in short. Resource means anything through which we can get benefit. Like in your organization, machine is a resource. In your organization, machine is resource. Okay, water is resource for all the country. Water is resource for all the country. For all human beings, water is a resource. We can get various types of benefit through water. In your organization, machine is resource. Furniture is resource. Understood? Likewise, can human be a resource? क्या ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है? सोचिए, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एक रिसोर्स बन सकता है. कब? जब उसको प्रॉपरली उसको अपॉइंट किया जाए, प्रॉपरली उसका सिलेक्शन हो, प्रॉपरली उसको ट्रेनिंग किया जाए और प्रॉपरली उसको रखा जाए. नाउ यू विल आस्क मी, व्हाट द टर्म्स यू सेड, what all terms you explained, we can't get. I am writing over here so that you can get those points. Wait. Resource means through which anything from which we can get any benefit in future.
So how come human will be a resource? I was explaining that if human is properly trained, human is trained. Second thing, proper selection is done for a prospective employee of your organization. prospective employee मतलब क्या होता है? prospective employee मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में एम्प्लॉय बनने वाला है. अभी तक वो एम्प्लॉय नहीं है, अभी तक वो सिर्फ नॉर्मल इंसान है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आपने उसको सिलेक्शन किया तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बनेगा. सो व्हाट आई रिटन ओवर हियर, if he or she is trained, if he or she is properly selected. Now the process does not end here. Human is trained, human is selected, human is properly remunerated. Now you will ask this, remuneration means what? Remuneration means proper salary is given to him. Proper salary is given to him. And does the process ends here? I will ask. No, you can't say the process ends here, because after this also some employee may not stay in your organization. He or she may find another organization better than yours. वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी रह सकते हैं, वो छोड़ के जा भी सकते हैं, उनको दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी मिल सकता है. हाउ कम? इसमें इसके बाद एक और स्टेप आता है, वो है मेंटेनेंस. उनको बचा करके रखो, उनको जाने मत दो, वो कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ना चले जाएं, उनको बचा करके रखो, छोड़ो मत उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से. तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस. अब ये मेंटेनेंस होगा कैसे सर? आप बोलेंगे कि सर हमसे तो हमारा ही मेंटेनेंस नहीं होता है, हम एम्प्लॉय का मेंटेनेंस कैसे करेंगे? वही तो सिखाने आया हूँ मैं आपको. मेंटेनेंस क्या होता है? एम्प्लॉय को आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना है. ऐसे नहीं कि कचड़े वाले एम्प्लॉय को आप रख लेंगे, सब बेकार एम्प्लॉय को उनको रखने की ज़रूरत नहीं, वो तो रहेंगे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में. जो अच्छे एम्प्लॉय हैं, जो आपके फ्यूचर में आपके ऑर्गेनाइजेशन के एसेट बनने वाले हैं, उनको आपको ऑर्गेनाइजेशन में रखना है. समझ में आ रहा है? तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छे एम्प्लॉय हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा काम करके दे रहे हैं, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ के लिए वो रेस्पॉन्सिबल हैं, उनको आपको बचा करके रखना है, उनको आपको पकड़ के रखना है, ताकि वो कहीं और ना चले जाएं. वो कैसे रखेंगे आप? वही इस चैप्टर का मतलब है, स्टाफिंग, उसी में हम पढ़ेंगे. और HRM क्या है? HRM एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें कि स्टाफिंग आता है, और उसी के लिए तो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्ड इसमें भी यूज़ हुआ है. ये देखिए, ये मैनेजमेंट वर्ड यूज़ हुआ है. Now you will ask, which term is broader, staffing or HRM? One diagram I will draw in your board. You can easily understand without saying any word. Wait for a moment. एक सिंपल सा डायग्राम मैं बनाता हूँ. ये HRM का एरिया है, रेड वाला. वेट, HRM का एरिया है. अभी आप स्टाफिंग का एरिया देख लीजिए. स्टाफिंग का एरिया है ये ग्रीन वाला पोर्शन.
So you can easily understand HRM is the broader term, staffing is a part of it. Staffing is a part of it. That means HRM is the broader circle or broader area, you can say. You can see the red area, red portion. That means the red area, and staffing is a part of it. Staffing is a small portion out of it. तो staffing छोटा है या HRM छोटा है. You can say staffing is narrower and HRM is broader term. That means क्या हम ये बोल सकते हैं कि HRM के अंदर में स्टाफिंग आता है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि स्टाफिंग जो है वो HRM के अंदर में आता है, या फिर HRM के अंदर में स्टाफिंग आता है. एक ही बात है जो भी है, ठीक है. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM का मतलब होता है, ये हम डिस्कस किए. ह्यूमन को रिसोर्स क्यों बोला गया? क्योंकि अगर वो सही रहे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो एसेट रहेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो फ़ायदा पहुंचाएंगे. तो इसीलिए उनको रिसोर्स बोला गया है, ठीक है. और उनके नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, टैलेंट, वो सबको देख के ह्यूमन को रिसोर्स बोला गया और उनको मैनेज करने की भी ज़रूरत है, ठीक है. वो चीज़ हमने देखा. अब देखो इसमें एक और चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स. अब आप बोलेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता क्या है? जो चीज़ स्टाफिंग में आता है उसी का एक ब्रॉडर टर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सी कई बार ऐसा होता है कि ये HRM वाला एरिया है, एक स्टाफिंग भी बना ही देता हूँ मैं. ठीक है. तो पहले HRM में आता क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या आता है. देखो पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नीड हमको देखते हैं. हम पढ़ क्या रहे हैं, HRM में क्या आता है. देखो यहाँ पे ये जो HRM है उसमें क्या चीज़ आता है हम ये पढ़ रहे हैं. पहले ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट हम जानते हैं. देखो ये डबल ई मतलब एम्प्लॉय, मैं आपको बोला भी था पहले, अभी भी बोल रहा हूँ. पूरे स्टाफिंग चैप्टर में मैं डबल ई लिखा मतलब वो एम्प्लॉय होता है, ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन का हम पहले क्या जानेंगे, एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितने, ठीक है. पहला ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट हम देखेंगे, या फिर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है. फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मतलब मैं बताया था, सबको प्रस्ताव भेजेंगे. जैसे वो एग्जांपल डिस्कस किए थे अपन, लड़की लड़का का शादी एंड ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट, ठीक है. तो द नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट, ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, कई लोग बोल भी रहे होंगे, सिलेक्शन. जब अपने पास एम्प्लॉय का लेटर आ जाएगा, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय के बारे में हमको पता चल जाएगा, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय के बारे में हमको पता चल जाएगा, तो हम करेंगे उनका सिलेक्शन करेंगे. और किसका सिलेक्शन मतलब तो जानते ही हो, बेस्ट एम्प्लॉय जो होगा, जो आउट ऑफ द बेस्ट जो होगा उसका सिलेक्शन करेंगे. फिर उसके बाद होगा क्या, देखो ये तीन चीज़, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन वाला चीज़ हम पहले भी पढ़े थे. उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, और जैसे मैं पहले डिस्कस किया,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये सारा चीज़ आता है। सिलेक्शन करने के बाद बात ख़त्म नहीं हुआ है। पहले रिक्वायरमेंट देखे, फिर रिक्रूटमेंट किए, फिर सिलेक्शन किए, उसके बाद देखो सिलेक्शन हो गया मतलब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो काम कर लेगा अच्छे से तो उसको क्या करेंगे, सैलरी देंगे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन। वैसे तो सैलरी और कंपनसेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए सैलरी मतलब तो आप कोई भी तनख्वाह दिए तो उसको सैलरी बोलते हैं। कंपनसेशन मतलब, जैसे कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो आपने जितना टाइम ऑर्गेनाइजेशन को दिया, मतलब एम्प्लॉय ने जितना टाइम ऑर्गेनाइजेशन को दिया, उसके बदले ऑर्गेनाइजेशन जो उसको भरपाई करता है एक्चुअल में, कंपनसेशन उसको बोलते हैं। बट हम नॉर्मली सैलरी और कंपनसेशन को एक ही मानते हैं, ठीक है। मतलब कंपनसेट मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपको कुछ प्रोवाइड किया, ठीक है, तो आप भी उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड ने एक गिफ्ट दिया आपको, ठीक है, आपके बर्थडे में, तो कुछ दिन के बाद जब उसका बर्थडे आता है तो आप भी उसको गिफ्ट देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन, ठीक है। तो कंपनसेशन ऐसा टर्म है। तो हम सैलरी के साथ कंपनसेशन को बराबर कर देते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। कंपनसेशन दिए, सैलरी दिए, फिर ईयर एंड जब हो गया तो उसके बाद उसको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी देते हैं, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवॉर्डिंग, रिवॉर्डिंग। यहाँ पे अवार्ड है, अवार्ड को एडिट करके रिवॉर्ड लिख देते हैं, REWARD, हुआ अवार्ड, रिवॉर्ड। इट also includes activity related to liaison with government। यहाँ पे एक और बात है कि लाइसन विथ गवर्नमेंट, मैं इसको एक अलग कलर से लिखता हूँ, लाइसन, LIASON, लाइसन विथ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को GOVT मैंने लिखा है, ठीक है। इट इंक्लूड्स मतलब ये लाइसन विद गवर्नमेंट किसके साथ है, ये HRM के साथ। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6, ये 7 नंबर पॉइंट है। मतलब HRM में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है हम वो पढ़ रहे थे ना। तो पहला है रिक्वायरमेंट देखते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सैलरी, कंपनसेशन, रिवॉर्ड। फिर उसके बाद लाइसन विद गवर्नमेंट भी एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि HRM में आता है। अब आप बोलेंगे लाइसन मतलब क्या, मैं बताता हूँ लाइसन का मतलब क्या है। लाइसन मतलब होता है, सिंपल मीनिंग होता है कॉन्टैक्ट, ठीक है। लाइसन का मतलब होता है कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लाइसन मतलब होता है कॉन्टैक्ट। अब आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट, नो माय डियर स्टूडेंट्स, इतना इजी टर्म है नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। अब एक इसके लिए मेरे को एक बार बोर्ड रब करना पड़ेगा, मैं कर दूँ, करना ही पड़ेगा। देखिए
देखो यहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है। यहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिस है जहाँ पे एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। मतलब इनके गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉय नहीं हैं, अभी इनको एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है। मतलब इनके ऑफिस खाली पड़ा है, इनको एम्प्लॉय लोग का ज़रूरत है, स्टाफ का ज़रूरत है जो इनके ऑफिस में आकर के काम करें। अब क्या है, अब ये लोग बोलेंगे कि हमको स्टाफ चाहिए, स्टाफ चाहिए, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे कि हमको स्टाफ चाहिए, प्रॉपर स्टाफ नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आजकल होता है, एक एजेंसी भी होता है, ठीक है। एजेंसी मतलब एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी भी होता है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको, इतना डिटेल में शायद ही कहीं पे मिलेगा, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। लाइसन मैं बता क्या रहा हूँ, लाइसन का मतलब क्या होता है वो बता रहा हूँ। लाइसन यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन, लाइसन मतलब क्या है। तो देखो कुछ एम्प्लॉयमेंट एजेंसियाँ होती हैं, इनको अब गवर्नमेंट का ऑफिस में एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है, यहाँ है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। अब यहाँ कौन है देखते हैं, यहाँ हैं कुछ एम्प्लॉय, इनको चाहिए जॉब, जॉब चाहिए, ठीक है। किसको जॉब चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय लोग जो हैं, देखो कैसे मुंह लटका के हैं, मुंह लटका के इसलिए क्योंकि इनके पास जॉब नहीं है, इनको चाहिए जॉब, ठीक है। अब इनको तो जॉब चाहिए, इसके पास एम्प्लॉय नहीं है, और ये बीच में ठहरा एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। तो ये लोग करेंगे क्या, इनको ये जो है ये गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानते कि गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब का रिक्वायरमेंट है, मतलब यहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा होता है रियल लाइफ में, ऐसा ही होता है। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वाले क्या करते हैं, ये लोगों क्या करेंगे, ये जो एम्प्लॉय लोग हैं ये लोग जाएंगे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास, इनको बोलेंगे कि आप हमारा जॉब लगवा दो, हमारा जॉब लगवा दो। तो हमारा जॉब लगवा दो बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को, तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बोलेगा ठीक है, हम आपका डिटेल रख लिए हैं, जब भी हमारे पास कोई भी जॉब का रिक्वायरमेंट आएगा हम आपका जॉब वहाँ लगवा देंगे, ठीक है। ये बात पहले हो चुकी थी। अब गवर्नमेंट ने इनको बोला कि हमको एम्प्लॉय का ज़रूरत है, गवर्नमेंट का जो ऑफिस है ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास जाएगा, ठीक है। क्या बोलेगा, हमको स्टाफ का ज़रूरत है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास पहले से ही कुछ एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन रहता है, कुछ ऐसे ह्यूमन रिसोर्स का इंफॉर्मेशन रहता है, किसके पास, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास। और जब गवर्नमेंट ऑफिस से खबर आता है कि हमको स्टाफ का ज़रूरत है, तो ये क्या करता है, इनको स्टाफ का डिटेल प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। इनको स्टाफ का डिटेल प्रोवाइड कर देता है। प्रोवाइड स्टाफ डिटेल्स, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइसेनिंग, इसको बोलते हैं लाइसेनिंग। मतलब एम्प्लॉयमेंट एजेंसी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट और इसके बीच में एक कॉन्टैक्ट बनवा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लाइसेनिंग, ठीक है। तो ये चीज़ भी आता है आपके HRM में। ये सारा जो प्रोसीजर हमने देखा,
तो ये सारा प्रोसीजर जो हमने देखा ये सब आता है आपका HRM में, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर आता है HRM में, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़? ये सारा प्रोसीजर आता है HRM में, ठीक है। आई होप आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि लाइसेंस मतलब क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि HRM कहाँ यूज़ होता है और स्टाफिंग कहाँ यूज़ होता है। HRM जनरली बिग ऑर्गेनाइजेशन में HRM यूज़ होता है, ठीक है। बिग ऑर्गेनाइजेशन में HRM यूज़ होता है। वहाँ पे एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो कि सिर्फ एम्प्लॉय लोग के बारे में देखता है। और स्टाफिंग कहाँ यूज़ होता है? स्टाफिंग यूज़ होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। स्टाफिंग वर्ड जो है वो यूज़ होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और यही चीज़ जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो हम उसको HRM बोलते हैं, क्योंकि HRM बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है और उसके लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट को संभालने के लिए अलग से और एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। इस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए अलग से एम्प्लॉय होते हैं जो कि स्टाफिंग का काम को देखते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा स्टाफिंग और HRM में, ठीक है। अब एक टर्म है कि स्टाफिंग और HRM में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, ठीक है। स्टाफिंग और HRM में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, एक टर्म है। वेट, सारे बच्चे स्क्रीन की तरफ देखेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इन द प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो हमने डिस्कस किया वही सारा चीज़ होगा। एक बार मैं आपके टेक्स्ट से बता दे रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एज यू ऑल नो ह्यूमन इज़ ए रिसोर्स इफ प्रॉपरली प्लान, ठीक है। इट मीन्स डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ टाइप ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए और कितने एम्प्लॉय चाहिए। किस टाइप के मतलब स्किल्ड, अनस्किल्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइप। और नंबर मतलब कितने नंबर, कितने पीसेस, ठीक है। एम्प्लॉइंग पीपुल, एम्प्लॉइंग में क्या आता है? उनको रोजगार पे रखना। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, ये आप समझ चुके हैं, पहले डिस्कस किया जा चुका है। करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ मतलब उनका करियर जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लिया, अब उनका करियर क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, उनको ट्रेनिंग करना, उनको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है वो सिखाना, उनका डेवलपमेंट करना। फोर्थ नंबर है परफॉर्मेंस अप्राइजल, मतलब वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका परफॉर्मेंस को चेक करना, इंक्लूडिंग फीडबैक। परफॉर्मेंस अप्राइजल मतलब वही चीज़ होता है, उनका फीडबैक लेना, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं उसको चेक करना। फिफ्थ नंबर है मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब उनको उत्साहित कैसे करना है, उत्साहित कैसे करना है। द ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, उनको स्कीम देना, कुछ बोनस देना, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल बोनस, मतलब पैसे के तौर पे जो देते हैं उसको फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मतलब जो पैसे के अलावा, जैसे कि घर दे दिए, उनके बच्चों को स्कूल ऑफर कर दिए, है ना, उनको अदर फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिए, तो वो हो गया नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। तो उससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाता है। मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रखा जाए, तो यही सारा ट्रिक होता है। कंपनसेशन मतलब पता है, सैलरी देना, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय कीपिंग द माइंड देयर क्वालिफिकेशन, जितना वो क्वालिफाइड है उसी हिसाब से उसको कंपनसेशन देना। प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मतलब सोशली उनको सिक्योर करना, सोसाइटी के टर्म से उनका वेलफेयर करना, मेडिकल फैसिलिटी देना, हेल्थ फैसिलिटी देना, इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड करना, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, तो ये सारा आ जाएगा आपका सोशल सिक्योरिटी में। 8 नंबर है रिव्यू एंड ऑडिट, रिव्यू एंड ऑडिट में क्या आएगा? रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, मतलब वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो उसको रिव्यू करना। रिव्यू मतलब फिर से चेक करना, उनका ऑडिट करना मतलब जो उनका पॉलिसी है, किस टर्म्स में वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको चेक करना, उनका ऑडिट करना और अदर प्रोसीड्योर फॉलो करना। तो ये सारा चीज़ आता है आपके आज के दिन में HRM में, ठीक है। आई होप आप सबको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।